Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher Alia Batul with the subject Database Systems. I am here with the lecture number 9. Students, in the previous lecture we discussed different types of keys in the database, like we study super key, candidate key, unique key, primary key and other many keys, but we are here for a new lecture that is relational algebra. Students, before starting the lecture, I want to give you a brief introduction of relational algebra. Student, this is first created by E.F. Coate with IBM family of algebra, with well-founded semantics used for modeling the data stored in relational database and defining queries on it. And the main application of relational algebra is providing a theoretical foundation for relational databases, particularly query language for such database, chief among which is SQL. Let's start. Relational algebra. Following major properties of relational algebra is relational algebra. Students, operation works on one or more relations to define another relation leaving the original intact. Students, एक टेबल पे ही काम नहीं करता, बल्कि इसको एक से ज़्यादा टेबल्स हों, then relational algebra पे काम होगा. It means that the input for relational algebra can be one or more relations and the output would be another relation, but the original participating relation will remain unchanged and intact. Okay, you will see in the next slides table examples. Two tables will remain unchanged and the resulting query is a table. Both operands and results are relations, so output from one operation can become input to another operation. It means that the input and output both are relations, so they can be used iteratively in different requirements. Allow expressions to be nested just as in arithmetic. This property is called closure. Students, we will discuss 5 basic operations in relational algebra, like selection, projection, Cartesian product, यूनियन एंड सेट डिफरेंस. इसके अलावा हम आज जो है रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर इन प्रोजेक्शन, इन जो ऑपरेशंस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा है, इसके साथ साथ जॉइंस को भी देखेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन लाइक इंटरसेक्शन, डिवीजन. अभी आप नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो देख सकते हैं कि थीटा जॉइन है, इक्वी जॉइन है, नेचुरल जॉइन है एंड आउटर जॉइन है. So let's start with relational algebra. Mean it is a procedural query language. जैसे फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया, स्टार्ट हुआ query language से. It consists of a set of operations that take one or two relations as input and produce a new relation in their result. तो स्टूडेंट्स, दो तरह के बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो हम इसमें परफॉर्म करेंगे. वन इज यूनरी ऑपरेशन एंड सेकंड इज बाइनरी ऑपरेशन. स्टूडेंट्स, यूनरी ऑपरेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन, as the name suggests, unary, only one relation are called unary operation. The following operations are the unary operations, like selection and projection. अभी हमने 5 operations की बात की, जिनमें जो selection and projection are the unary operation. The second is binary operation. What is binary? As the name suggests, two pairs of relations. The operations which involve pair of relation are called binary operation. A binary operation, students, uses two relations as input and produces a new relation as output. The operations of binary are union, set difference and Cartesian product. Let's see one by one these operations. First, what is select operation? Select operation, as मैंने अभी पहले बता दिया कि this is a unary operation. Select operation is performed to select certain rows or tuples of a table. Just one table पे भी काम करेगा, so it performs its action on the table horizontally. The tuples are selected through this operation using a predicate or condition. This command works on a single table and takes rows that meet a specified condition, copying them into a new table. Lower Greek letter sigma
मीन्स सिग्मा लेटर से हम सिलेक्शन को शो करेंगे. द प्रेडिकेट अपीयर्स एज अ सबस्क्रिप्ट ऑफ सिग्मा. स्टूडेंट्स, यू कैन सी the sigma, like the selection operation is commutative. Select C1 column 1 of select column 2 of table name R, means relation R equal to because it is commutative operation, so select column 2 of into column select column 1 of relational R is equal. Students, we can see this rule in a table. Like student table have 5 attributes: student ID, student name, student address or program name, and course semester. Sorry, current semester. You can see 5 attributes of a table student. You have to select, like this is a query, select करंट सेमेस्टर ग्रेटर देन 3, मीन्स के वो करंट सेमेस्टर उन लोगों को हमने सिलेक्ट करना है जिनका करंट सेमेस्टर 3 से अबव है इन द स्टूडेंट टेबल. तो इसमें दोबारा वापस जाके थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारे टेबल में 3 से अबव वाले जो लोग हैं वो 3 लोग हैं, यानी सुहेल डार एंड सुहेल डार, उनका भी MCS 4 करंट सेमेस्टर है. इसके अलावा शुएब अली सेलेक्ट नहीं होंगे बिकॉज इनका करंट सेमेस्टर इज 3. एंड ताहिरा इजाज करंट सेमेस्टर इज 5. दिस इज ऑल्सो अबव or greater than 3. Arifa Zia is also current semester 5. This is also selected. So the resultant table will this: Suheldar 4 current semester 4 is greater than 3. Tahira Ijaz current semester 5 is greater than 3. Arifa Zia current semester 5 is also greater than 3. So you can see the query and resultant table of selection. Just select one table. In selection parameter operations, the comparison operators like this, greater than, less than, or rename, projection, or Cartesian product, or three-way comparison, they all are used. Like you can see select in example query example, select student ID equal to S1015. मीन्स आपने अभी जो देखा कि ताहिरा इजाज जो हैं उनका स्टूडेंट आईडी S1015 था. आप सिंपल एक ही जो रो है एक ही उस एट्रीब्यूट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी. एंड जो ब्रैकेट में आपको कैपिटल नजर आ रहा है, दिस इज द टेबल नेम. सेलेक्ट करें स्टूडेंट आईडी जिसका स्टूडेंट आईडी 1015 है इन द स्टूडेंट टेबल. इसी तरह यू कैन सेलेक्ट program name. This is a three-way comparison operator, means just one नहीं, एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं जिनका प्रोग्राम नेम जो है वो MCS होगा इन द स्टूडेंट टेबल. एंड यू कैन सी सुहेल डार MCS हैं, ताहिरा इजाज MCS है, तो इस तरह से ये एक से ज्यादा हो सकते हैं. So let's go next. Project operator. Projection operator is also a unary operator. Student, selection को आपने sigma से देखा and projection को आप pi like symbol से देखेंगे. This is also a Greek letter. Projection. What is projection? The selection operation works horizontally on the table. On the other hand, the project operator operates on a single table vertically. The difference between two unary operator is selection work करेगा horizontally and projection work करेगा vertically. So it produces a vertical subset of the table, extracting the values of specified columns, eliminating duplicates and placing the values in a new table. It is a unary operation as discussed above that returns its argument relation with certain attributes left out. Students, this is a Greek letter projection, Greek letter, and denoted by this. For example, consider a relation faculty with 5 attribute and certain number of rows. हमने पहले student table देखा. Now you can see faculty with 5 attributes again
एंड हमने अभी कहा कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है वो वर्टिकल जो है उस वर्टिकल लाइंस पे काम करेगा। फैकल्टी आईडी में फैकल्टी टेबल, फैकल्टी आईडी एट्रीब्यूट है, फैकल्टी नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड रैंक, एंड क्यूरी इज देयर। पाए मीन प्रोजेक्ट करना है आपको, प्रोजेक्शन करनी है फैकल्टी आईडी एंड सैलरी पे। पहले आपने पाई की जगह सिलेक्शन ऑपरेटर यूज किया था विद द लेटर सिग्मा, तो उसमें आपने उसको हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट किया था, बट नाउ यू आर ऑन द वर्टिकल स्टेट। प्रोजेक्ट फैकल्टी आईडी एंड सैलरी इन द टेबल नेम faculty. So you can say faculty ID and salary is selected now. All other attributes are exempted. Faculty ID and salary from the table faculty is the resultant table. Composition of relational operator. How to composite relational operators? Relational mean unary, selection and projection दोनों को इकट्ठा करके हम किस तरह से यूज करेंगे। द रिलेशनल ऑपरेटर्स लाइक सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट कैन आल्सो बी यूज्ड इन नेस्टेड फॉर्म्स iteratively as the result of an operation is a relation, so that this result can be used as an input for other operation. For example, if we want the names of faculty members along with departments who are assistant professors, then we have to perform both the select and project operations on the faculty table. This first select operation is applied for selecting the associate professor, and the next operation output a relation that is given as input to the projection operation for the required. You can see the query project, faculty name and faculty department. आपने प्रोजेक्ट करना है, इन दोनों को सिलेक्ट, इन दोनों को आपने वर्टिकली जो है वो सेपरेट करना है। एंड सबसे पहले जो आपने करना है, बिकॉज दिस इज इन ब्रैकेट, सिग्मा मीन सेलेक्ट करेंगे रैंक इक्वल टू एसोसिएट प्रोफेसर। जो लोग जिनका रैंक एसोसिएट प्रोफेसर है इन द टेबल ऑफ फैकल्टी, उनको सेलेक्ट करेंगे और फिर उनको इनटू करेंगे, मीन किसके साथ प्रोजेक्ट कर देंगे, फैकल्टी नेम एंड डिपार्टमेंट के साथ। यू कैन सी हियर फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट फैकल्टी नेम एंड डिपार्टमेंट। पहली चीज आपने प्रोजेक्ट कर ली, पहले प्रोजेक्शंस को सॉल्व किया, उसके बाद आपने सिग्मा को जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आपने सारे के सारे जो सेलेक्ट किए थे फैकल्टी नेम एंड डिपार्टमेंट जो हैं, उनमें आपने देखा कि जो एसोसिएट प्रोफेसर वाले रैंक के लोग थे, जस्ट आपने उनका रिजल्टेंट टेबल एक बना लिया। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ रिलेशनल टेबल। नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशंस को हमने देखना है, क्योंकि हमने दो टाइप्स देखी हैं। वन इज ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा की, वन इज यूनरी ऑपरेशन। दोनों को हमने अभी स्टडी किया, सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। अगेन मैं बता दूं, सिलेक्शन वर्क करेगा हॉरिजॉन्टली एंड प्रोजेक्शन काम करेगा वर्टिकली। एंड कंपोजिशन ऑफ बोथ भी अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहले यूनियन को देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आपने सेट थ्योरी पहले पढ़ी हुई है, तो उसी के रूल के मुताबिक आपने यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करना है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर यूनियन ऑपरेटर इज दैट द बोथ the relations should be union compatible. It means that relations must meet the following two conditions. Both the relations should be of same degree, which means that the number of attributes in both relations should be exactly same. जिन दो टेबल्स का आप रिलेशन लेने जा रहे हैं, they should be same in the form of degree. And the second condition is the domains of corresponding attributes in both the relations should be same. Degree भी same हो and जो आपकी attributes की domains है वो भी same होनी चाहिए। ओके, आप देखें कि दो टेबल्स हैं आपके पास, R and S, दो रिलेशंस नेम R and S, and you have to union the R and S. This is the rule R union S equal to S union R. ओके, हमारे पास कोर्स 1 का एक टेबल है एंड कोर्स 2 का एक टेबल है। यू कैन सी टू टेबल्स। हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। कोर्स 1 में कोर्स ID, प्रोग्राम ID, क्रेडिट आवर्स एंड कोर्स टाइटल, 4 एट्रीब्यूट्स आपके सामने हैं। एंड कोर्स 2 में भी हमारे पास 4 ही एट्रीब्यूट्स हैं। इन चारों के एट्रीब्यूट्स को अब हम देखेंगे कि हम इसको यूनियन कैसे करते हैं। आपको
जैसे आपने सेट थ्योरी पहले पढ़ी हुई है, आपको पता है कि यूनियन हमेशा एज अ सीक्वेंस काम कर रहा है। तो कोर्स क्रेडिट आर 2 3 4 5, पहले ये पूरी रो सेलेक्ट होगी, सेकंड 2 3 4 5 के बाद 3 4 5 6, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 4 5 6 7 सेम आ रहा है, तो हम इसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूनियन रूल। एंड फाइनली एक दफा हम लिखेंगे 4 5 6 7 वाली रो, और उसके बाद 8 9 4 4 क्रेडिट आर आईडी की रो आप राइट करेंगे। दिस इज द रिजल्टेंट टेबल of union course 1 and course 2. You can see the duplication are not allowed in the union. Next come on the intersection operations. दोबारा मैं कोट करूंगी कि आपने सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन पढ़ा था। द अदर नेम ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉमन, मीन्स इन द रिलेशन आर एंड रिलेशन एस अगर कोई भी रो कॉमन आ रही है, आप जस्ट उसको सेलेक्ट करेंगे। द इंटरसेक्शन ऑपरेशन आल्सो हैज द रिक्वायरमेंट दैट बोथ द रिलेशन शुड बी यूनियन कंपैटिबल। जो यूनियन की आपके पास कंडीशंस थी वही दोनों इधर हैं कि इनकी डिग्री एंड डोमेन्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए, विच मीन्स दे आर ऑफ सेम डिग्री एंड सेम डोमेन्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर यूनियन intersection. R and S are two relations, and we take intersection of these two relations, then the resulting relation would be the set of tuples which are in both R and S. So you can see course 1 and course 2, the common row or tuple is 4 5 6 7. अगेन हम बैक जाके देख लेते हैं कि कोर्स 1 एंड कोर्स 2 जो टेबल था हमारे पास, इसमें ये दो टेबल्स थे जिसका हमने दोबारा से इन्हीं टेबल्स का हमने यूनियन लिया था, और इन्हीं टेबल्स का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, जिसको आपने स्किप किया था एक दफा। 4 5 6 7 आर द कॉमन क्रेडिट आर इन द कोर्स 1 एंड कोर्स 2, सो इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ कोर्स 1 एंड कोर्स 2। स्टूडेंट्स, सेट डिफरेंस ऑपरेटर को देख लेते हैं कि व्हाट इज सेट डिफरेंस ऑपरेटर। सेट डिफरेंस ऑपरेटर को लाइक इन सेट थ्योरी माइनस ऑपरेटर के साथ आप इसको डिनोट करेंगे और अप्लाई भी इसी तरह करेंगे। आर एंड एस आर द टू रिलेशंस विच आर यूनियन कंपैटिबल, देन डिफरेंस ऑफ दीज टू रिलेशंस मीन्स माइनस करेंगे, डिफरेंस ऑफ दीज टू रिलेशंस विल बी सेट ऑफ ट्रिपल्स दैट अपीयर इन आर बट डू नॉट अपीयर इन एस। रिजल्टेंट टेबल क्या होगा कि जो चीज आर के टेबल में है, जो ट्रिपल आर के टेबल में है, बट इट इज नॉट इन द इन प्रेजेंट इन टेबल एस, relation S, so this is the difference. It is denoted by minus operator. For example, if you apply difference operator in course 1 and course 2, then the resulting relation would be this. This is not in the course 2. Clear? This is the resultant table. Cartesian product. Product mean, as the name suggests, multiplication rule. The Cartesian product needs not to be union compatible. यहाँ पे दोनों कंडीशंस अप्लाई नहीं हो रही। जरूरी नहीं है कि डिग्री एंड डोमेन ऑफ बोथ टेबल्स आर सेम। इट मीन्स दे कैन बी ऑफ डिफरेंट डिग्री. It is denoted by X. Suppose there is a relation R with attributes A1, A2 and so on, and S with attributes B1, B2 and so on. इसका मतलब ये कि A1 में भी इसके attributes 3 और S के attributes जो हैं वो 4 हो सकते हैं. So product क्या होगा? R multiply by S means कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है हमने R और S का. तो हम कोर्स एंड स्टूडेंट, अभी पहले हमने टेबल देखा था स्टूडेंट का भी और कोर्स का भी, तो ये दो टेबल आपके सामने हैं. इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्चुअली सबसे पहले जो कोर्स है उसकी रो नंबर 1 ट्रिपल 1 3 4 5 6 जो है डेटाबेस सिस्टम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी 101 ताहिर अली ताहिर और जितनी भी इसके अंदर स्टूडेंट टेबल के अंदर जितनी भी रोज होंगी उनके साथ पहली रो को नेक्स्ट टेबल के तमाम रोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे.
like database system, financial management, money and capital market, इन तमाम को आपने एस सेकंड टेबल जो है सेकंड टेबल स्टूडेंट के फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया, मीन अली ताहिर तमाम के साथ जो है वो अटैच किया। उसके बाद जब स्टूडेंट सेकंड टेबल की रोज जो है वो फर्स्ट टेबल की तमाम रोज को हमने सेकंड टेबल की फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द सेकंड द रोज ऑफ फर्स्ट टेबल टू रोज ऑफ सेकंड रो ऑफ सेकंड टेबल, लाइक दिस। कोर्स आईडी 3456 एंड 4567 एंड 5678 तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट एस आईडी स्टूडेंट आईडी 101 से। उसके बाद इन फर्स्ट टेबल कोर्स की तीनों कोर्स क्रेडिट आईडीज को हमने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट आईडी 103 के साथ। तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम आते हैं जॉइन ऑपरेशंस की तरफ, कि ये जो जॉइंस हैं ये क्या होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जॉइंस एक्चुअली होते क्या हैं और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं। जॉइन एक स्पेशल फॉर्म है क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट जैसे अभी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखी स्टूडेंट्स, इसमें आपने डिफरेंट जो है दो टेबल्स जिनकी डिग्री एंड डोमेन सेम नहीं थी उनको मल्टीप्लाई किया, बट इनको एक स्पेसिफिक मैनर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इनका प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड जॉइंस। और जॉइंस में आप थीटा ज्वाइन करेंगे, इक्व ज्वाइन करेंगे, नेचुरल ज्वाइन करेंगे, आउटर ज्वाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, ज्वाइन ऑपरेशन कंबाइंस द प्रोडक्ट सिलेक्शन and possibly projection. The join operator combines data from one tuple of a relation with tuples with another or same relation when certain criteria are met. The criteria involve a relationship among the attributes in the join relations. So you can see join operation is in the form of two tables. Cross product of two tables. Cartesian product, we join a tuple of one table with the tuple of the second table, but in join there is a special requirement of relationship between tuples. For example, if there is a relation student and a relation book, then it may be required to know that how many books have been issued to any particular student. Now in this case, the primary key of student, that is student ID, is a foreign key in book table. You can see in this example. थीटा ज्वाइन, टाइप्स ऑफ ज्वाइन में अभी जैसे भी बात की है, थीटा ज्वाइन, इक्व ज्वाइन, सेमी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थीटा ज्वाइन एक्चुअली क्या है। यू कैन सी शेप ऑफ थीटा, सिंबल ऑफ थीटा। हमने रिलेशन आर को कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू प्रोडक्ट लेना है थीटा ज्वाइन ऑफ एस। सो जल्दी से आगे चलते हैं। कोर्स एंड फैकल्टी दो टेबल्स हैं हमारे सामने, इन दोनों का हमने थीटा ज्वाइन लेना है। तो हम किस तरह से ज्वाइन करेंगे, ये आपके सामने क्यूरी है। सिग्मा और सेलेक्ट रैंक इक्वल टू एसोसिएट प्रोफेसर, उसको आपने ऑफ द टेबल फैकल्टी, उसका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया कोर्स के साथ। ये फैकल्टी और कोर्स दोनों टेबल आपके सामने हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें आपने देखा था कि डिग्री हमने एक इसकी कंडीशन देखी थी कि इसमें वैल्यूज नल हो सकते हैं। एंड यू कैन सी इन द टेबल कोर्स फैकल्टी आईडी में कोर्स क्रेडिट कोड जो है 3457, इसकी फैकल्टी आईडी नहीं है, दिस इज नल वैल्यू। तो हम देखते हैं कि हम आउटर ज्वाइन और राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इन तमाम में किस तरह से नल वैल्यूज को शो करते हैं। तो आपने एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं फैकल्टी आईडी में देख लिए कि एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ आपको दो लोग नजर आ रहे हैं। फैकल्टी आईडी जो है 235 एंड 236, ताहिरा एंड आयशा आर एसोसिएट प्रोफेसर्स। अब आप उनका कोर्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे। ताहिरा सबसे पहले हमने, क्योंकि पहला टेबल हमारा था फैकल्टी का, ठीक है, इसमें से ताहिरा को हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट टेबल की तमाम रोज के साथ, 3456 के साथ भी, 3457, 3458 एंड 3459 के साथ। उसके बाद दूसरे दो लोग हमारे पास सिलेक्ट हुए थे एसोसिएट प्रोफेसर। सेकंड इज ताहिरा के बाद आयशा, आयशा को भी हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज द थीटा ज्वाइन। नेक्स्ट है इक्वी ज्वाइन।
दोनों के नेम ज्वाइंस पे आ रहे हैं, बट इक्वी ज्वाइन मीन कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इक्वी ज्वाइन में आप इन दोनों के इक्वल इक्वल जो रोज हैं उन दोनों को ले लेंगे. लाइक इक्वी ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ ज्वाइन इन विच ट्रिपल्स आर ज्वाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज of a common attribute between two relations. Most commonly used type of join, the common attribute of both relations appears twice in the output. वहां पे रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं. तो यू कैन सी फैकल्टी आईडी और कोर्स का हमने इक्वल ज्वाइन जब लिया तो इक्वल इक्वल जो थे हमारे पास उस्मान, आयशा, समद, इन तमाम को हमने ज्वाइन कर दिया डेटाबेस के साथ, मनी एंड कैपिटल मार्केट के साथ, और दोनों में जहां जो किसी एक की भी नल वैल्यू थी हमने उसको एग्जाम्प्ट कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल ज्वाइन. नेचुरल ज्वाइन में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि नेचुरल ज्वाइन जो है सेम एज इक्वी ज्वाइन. द डिफरेंस इज दैट द कॉमन एट्रीब्यूट्स अपीयर ओनली वंस. वहां पे ट्वाइस आ रहे थे, बट यहाँ पे नेचुरल में एक ही दफा आएंगे. नेचुरल ज्वाइन रिमूव्स द डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स. In most systems, a natural join requires that the attributes have same name to identify attributes to be used in the joins. It may require a remaining mechanism. Like in natural join, you can see यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होगी. दोनों के कोर्स एंड फैकल्टी आईडीज को हमने ज्वाइन किया, बट देयर यू कैन सी देयर इज नो डुप्लीकेशन इन दिस रिजल्टेंट टेबल. The last two topics are left outer join and right outer join. हैं ये भी ज्वाइंस के ही, बट लेफ्ट एंड राइट दोनों में आप देखेंगे कि जहां नल वैल्यूज थी आप उनको देख सकते हैं कि ये सबसे पहले ये आपके पास टेबल्स हैं, और आप इसमें देखें कि स्टूडेंट पहले कोर्स में देख लें कि कोर्स में यहाँ पे हमें कोई एक जो स्टूडेंट आईडी है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का वो नल नजर आ रहा है, एंड सेकंड टेबल स्टूडेंट के अंदर आपको लास्ट रो जो है वो नल नजर आ रही है. तो यू कैन सी इन आउटर ज्वाइन द रिजल्टेंट टेबल इज दिस. आउटर ज्वाइन में आपने जहां नल वैल्यू थी लेफ्ट साइड्स के उनको नल शो कर दिया, बट जहां पे आप राइट आउटर कर रहे हैं राइट साइड की वैल्यूज को आपने नल शो किया, और आउटर और जो आपके लेफ्ट एंड राइट आउटर ज्वाइंस के बाद आपने सिंपल ज्वाइन जो ऑपरेशन है वो अप्लाई कर दिया, जिसमें तमाम जो वैल्यूज थी उनको आपने एग्जेम्प्ट कर दिया, मीन सेमी ज्वाइन. यू कैन सी नल वैल्यूज जो थी उन तमाम को एग्जाम्प्ट किया, तो आपके पास सेमी ज्वाइन आ गया. स्टूडेंट्स हम कंक्लूड करते हैं अपने लेक्चर को कि आज पूरे लेक्चर में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रा की रिलेशनल अलजेब्रा की डिफरेंट टाइप्स को देखा, और स्टूडेंट्स उसमें रिलेशनल अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशंस में आपने यूनरी ऑपरेशंस भी देखे एंड बाइनरी ऑपरेशंस भी देखे. और यूनरी ऑपरेशन में स्टूडेंट्स आपने सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन को देखा कि सिलेक्शन हमारे पास हॉरिजेंटली सेलेक्ट कर रहा है, प्रोजेक्शन वर्टिकली सेलेक्ट कर रहा है, एंड बाइनरी ऑपरेशन में आपने यूनियन. बाइनरी ऑपरेशन टोटली सेट थ्योरी पे बेस कर रहा है, तो आपने यूनियन देखा, इसमें इंटरसेक्शन देखा, यूनियन कॉमन, यूनियन सीक्वेंस वाइज ले रहा था, इंटरसेक्शन कॉमन एट्रीब्यूट्स को ले रहा था, सेट डिफरेंस माइनस कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा है, और उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ज्वाइंस जो है हमने देखा, थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन को देखा कि हम किस तरह से दो टेबल्स को आपस में वैल्यूज पे या उनकी डिग्री और डोमेन के बेसिस पे ज्वाइन करते हैं. आई थिंक आपको सारा लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा सा हम रिव्यू भी करेंगे. आई होप कि आप ये तमाम लेक्चर जो है वो कवर कर रहे होंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.